नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। कोरोना की पूरी अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड चल रही है। The Indian Military Academy colors is led by Battalion Under Officer Sandeep Gorangla. The escorts are Company Sergeant Major Lakshya Ahmad and Company Sergeant Major Karna Lodge. Our contingent is led by Senior Under Officer Dinesh Joshi. Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant moving to take his position at the western end of the drill square. The adjutant is mounted on his grey Charger Zorawat. The historic Chetwood building that you see in its entire splendor in front of you is named after Field Marshal Sir Philip Walhouse Chetwood, who inaugurated Indian Military Academy on 10
10th December 1932 and gave us on that day the abiding touchstone of leadership and soldiering, the Chetwood Credo. The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. In a short while from now, the parade will reform and move forward in review order for presentation of awards and for the address of the reviewing officer. Ladies and gentlemen, now the presentation ceremony for the award winners will take place. The award winners for Spring Term 2020 are the Sword of Honor awarded to the Gentleman Cadet adjudged overall best amongst the passing out course. Winner is Battalion Under Officer Akashdeep Singh Dhillon. The gold medal awarded to the Gentleman Cadet standing first in the overall order of merit of the passing out course. Winner is Academy Under Officer Shiv Kumar Singh Chauhan. The silver medal awarded to the Gentleman Cadet standing second in the overall order of merit of the passing out course. Winner is Academy Cadet Adjutant Saksham Rana.
The bronze medal awarded to the gentleman cadet standing third in the overall order of merit of the passing out course. Winner is Senior Under Officer Suraj Singh. The technical graduate course silver medal awarded to the gentleman cadet standing first amongst the technical graduates of the passing out course. Winner is Junior Under Officer Bharat Yogendra. The medal for the best gentleman cadet standing first amongst the gentleman cadets from friendly foreign countries. Winner is Junior Under Officer Don Man Son from Vietnam. The Chief of Army Staff banner is presented to the company standing overall first amongst all the companies. However, this term, the first position is being shared by Alarming Company and Singer Company. तो देहरादून से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब बात कोरोना की करते हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में 366 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में 185 और फरीदाबाद में 57 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल 6334 मामले एक्टिव हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 3789 यहां पर एक्टिव मरीज है। 2475 कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है, यानी कि ये मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना से अब तक हरियाणा में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या कोरोना का आंकड़ा हो। 70 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा यहां पर कोरोना का पॉजिटिव मरीजों का 6000 के पार पहुंच चुका है। और अभी भी नए मामले जो सामने आए वो 366 नए मामले सामने आए हैं। और आंकड़ों के बढ़ने के मद्देनजर कोरोना पर केंद्र के बड़े फैसले के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने फिर से मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई है। 16-17 जून को मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, उनसे बातचीत की जाएगी। 16 जून को 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही 17 जून को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी बैठक होगी, जिसमें अनलॉक 1.0 पर कोरोना की गंभीर स्थिति पर भी मंथन किया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने इसी मसले पर अब बड़ी बैठक बुलाई है। राज्यों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत होगी। 16 जून को 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही 17 जून को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत होगी। ये पूरी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। चर्चाएं ये भी हैं कि लॉकडाउन एक बार फिर लगाया जा सकता है, लेकिन स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है, ये 16 और 17 जून की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। शंकर आनंद हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, 16 और 17 जून को एक अहम बैठक है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन की चर्चाएं भी जो है वो एक बार फिर गर्म हो गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे जो लॉकडाउन की जो चर्चा हो रही है, लेकिन इस लॉकडाउन की जो चर्चा हो रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो काफी उस पर गौर किया जा सकता है। तो उसमें इस बात का जिक्र है कि जिन राज्यों में या जिस स्थान पर हॉटस्पॉट लगातार बन रहे हैं, जहाँ पर लगातार कोरोना से संबंधित मामले आ रहे हैं, उस जगह पर फिर से लॉकडाउन वहां पर किया जा सकता है। और खासकर अगर राज्यों की बात करें तो राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस से संबंधित मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। तो हो सकता है कि इन दोनों राज्यों में लॉकडाउन फिर से किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। और अगर बात की जाए 16 और 17 तारीख की महत्वपूर्ण बैठक की, तो प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल जो एक ऑनलाइन जो है बातचीत करेंगे। और 16 तारीख को 25 राज्यों से जुड़े हुए जो मुख्यमंत्री हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। और 17 तारीख उसके बाद 17 तारीख को जो बाकी के बचे हुए अन्य 16 मुख्यमंत्री
और केंद्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं तो वो उनसे भी बाकायदा उनसे मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। तो उन लोगों से बैठ करके जो बातचीत होगी उसी बातचीत में इस मामले पर चर्चा होगी कि कहाँ पे लॉकडाउन करना है और कहाँ लॉकडाउन अनलॉक करना है, यानी उसको खत्म करना है। तो इन तमाम मामलों पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठ करके इस मामले पर चर्चा होगी। उसके बाद ही इस मामले पर केंद्र सरकार कुछ औपचारिक तौर पर पुष्टि करेगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है 16 तारीख और 17 तारीख काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद केंद्र सरकार इस मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 16 और 17 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन आपको ये बता दें कि लॉकडाउन उन्हीं राज्यों में, उन्हीं शहरों में लगाया जाएगा जहां पर स्थिति बेहद गंभीर है, जहां पर लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन पूरी तस्वीर 16 और 17 जून के बाद साफ हो जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पर सफल रही प्लाज्मा थेरेपी। चंडीगढ़ पीजीआई में की गई प्लाज्मा थेरेपी। कुरुक्षेत्र का 60 साल का एक शख्स जो है वो ठीक हुआ है। 3 और मरीजों की भी इसमें प्लाज्मा थेरेपी की गई थी और इसमें थेरेपी के बाद तीनों मरीज अब ठीक हो गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि प्लाज्मा थेरेपी से लगातार लोग ठीक हो रहे हैं। न सिर्फ चंडीगढ़ पीजीआई बल्कि कई शहरों से ऐसी खबर सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है कोरोना पर सफल हो रही है। कुरुक्षेत्र की बात अगर की जाए तो 60 साल का एक युवक भी ठीक हुआ है। 3 और मरीजों की भी प्लाज्मा थेरेपी की गई थी जो अब ठीक बताए जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ पीजीआई भी उन हॉस्पिटल्स में शुमार हो गया जहां पर प्लाज्मा थेरेपी सफल रही। और ये जो पेशेंट आप देख रहे हैं ये पहले पेशेंट है पीजीआई में, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, 60 साल इनकी उम्र है, जिन पर प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई और सफल रही। पहले पेशेंट पीजीआई के। पीजीआई ने काफ़ी दिन पहले न्यूज़ 18 आपको बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल पीजीआई शुरू करेगी। जो डोनर हैं प्लाज्मा के वो पीजीआई को मिल चुके हैं और अब फाइनली आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये जो मरीज थे कोरोना पॉजिटिव के, इन पर प्लाज्मा थेरेपी आजमाई गई, सफल रही। पीजीआई भी देश के उन अस्पतालों में शुमार हो गया है जहां पर इसका सफल ट्रायल किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पीजीआई का। आपकी समझ सकते हैं, आप बड़े भावुक हैं इस समय। हाँ, पीजीआई वालों ने बहुत अच्छा हमारे साथ काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। जब आपको पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी आप पर की जाएगी, क्या रिस्पांस रहा, आप किस तरह से आपने देखा? बड़ा अच्छा रहा। अभी आगे रिपोर्टें बताएंगी क्या आएंगी। आप ठीक होकर जा रहे हैं, यही बड़ी सुकून की बात। धन्यवाद है पीजीआई प्रशासन का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत एक देखिए भावुक, देखिए आंखें भर आई। और पहले पेशेंट जिन पर प्लाज्मा थेरेपी आजमाई गई, पीजीआई की पूरी टीम, डॉक्टर जगत राम, पीजीआई के डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर विपिन कौशल, डॉक्टर आर शर्मा और ब्लड बैंक की पूरी टीम जिन्होंने इस पूरे इसको अंजाम दिया, डॉक्टर पंकज और तमाम जो टीम है पीजीआई की वो यहाँ पर मौजूद है। और डॉक्टर जगत राम से पहले बात करेंगे। सर, पहला सफल पीजीआई के पेशेंट जिन पर प्लाज्मा थेरेपी की गई। हाँ, तो ये तो हमारे लिए तो एक बहुत गर्व की बात है कि जो जी इस पेशेंट को जो काफ़ी सांस की प्रॉब्लम, पल्मोनरी इन्फेक्शन था और काफ़ी रैपिडली प्लाज्मा थेरेपी के बाद में ठीक हो गया। वैसे जो रिजल्ट्स है वो अल्टीमेटली बाद में एनालाइज करेंगे, पर ये पेशेंट ठीक हुआ और रिस्पॉन्स अच्छा आया। हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है और वी आर प्राउड ऑफ आवर टीम हु डिड दिस। एक बार गोयल जी, मुझे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कब आए थे? मैं शायद 29 को आया था। अच्छा, उससे पहले आप कहाँ पे, लाडवा में थे? लाडवा में। आपको क्या लक्षण क्या था? मेरे को चेस्ट प्रॉब्लम हो रही थी बस, और तो कुछ नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद पीजीआई आया? हाँ, पहले तो मैंने लाडवे में अपना टेस्ट करवाया, कोरोना टेस्ट, वो नेगेटिव दे दिया उन्होंने रिपोर्ट। अच्छा, फिर मेरे घर के अगले दिन मेरे को सैटरडे को कुरुक्षेत्र डॉक्टर अग्रवाल पे ले गए। उन्होंने मेरे को रात को मैं भी पॉजिटिव अच्छा कह दिया और रेफर उन्होंने एलएनजेपी को टेलीफोन करा, उन्होंने इंक्वायरी कर दी शहद लेने से, तो मैं पीजीआई आ गया। तो पीजीआई में जब आए क्या कहा आपको? पीजीआई में तो इमरजेंसी में उन्होंने लेके मेरे को एडमिट कर लिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अच्छा, और उसके बाद आपको दिक्कत क्या थी सांस लेने में? और बस रेस्पिरेशन प्रॉब्लम थी और तो कुछ नहीं था। अच्छा,
मेरी 80 से डाउन जा रही थी डॉक्टर साहब। अच्छा, जब आपको बताया गया कि आप पे प्लाज्मा थेरेपी करनी है आपकी, क्योंकि कंसेंट भी ली जाती है जरूरी हाँ है। हाँ हाँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरी वजह से आगे भी कोई और अच्छा होगा। जब आपकी और रिपोर्ट्स आएंगी आप भी प्लाज्मा डोनेट करेंगे? हाँ जरूर। ये जो प्लाज्मा थेरेपी सफल हुई है, पेशेंट अब ब्लड अपना यानी कि जो प्लाज्मा है ये आगे भी डोनेट करें ताकि और मरीजों की जान बचाई जा सके। आपको न्यूज़ 18 ने पहले ही सबसे पहले बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी यहाँ पर होगी, सारी तैयारियां। आज आपने न्यूज़ 18 पर यह भी देखा कि किस तरह से वो मरीज यहाँ से इस कोविड सेंटर से ठीक होकर निकला। प्लाज्मा थेरेपी का पहला जो मरीज जिस पर किया गया सफल होकर निकला। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और कोरोना के कहर के बीच कुरुक्षेत्र में 21 जून को सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। 21 जून को सुबह 10:20 से लेकर दोपहर 1:47 तक सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। इसके साथ ही कोरोना के खतरे को देखते हुए सूर्य ग्रहण मेले पर ग्रहण लग गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपने अपने घरों में रहकर शांति पाठ करने की अपील की है। ब्रह्म सरोवर में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों की भीड़ ना हो, लिहाजा 21 जून को कुरुक्षेत्र में धारा 144 भी लागू रहेगी। बीडीओस की गांव में ड्यूटी लगा रहे हैं, एसडीएम्स की संबंधित सब डिवीजन में लगा रहे हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट शहर में लगा रहे हैं हम, ताकि और जितने भी हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके हैं उन पे हम फोर्स लगाएंगे ताकि किसी भी तरह का आवागमन नहीं होगा। उस दिन धारा 144 का हम उसमें करेंगे और कोई भी उसकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और इधर सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे और कालका स्थित माता काली के मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में भी माथा टेका। शांति ब्रह्म शांति सर्वकुं शांति। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।